Hello, dear students. This is Professor Agam Dalal, and on behalf of JK Classes, I welcomes you all in this particular video. This video is solely for the total paper discussion and full length paper discussion of CA Inter September 2025 attempt. जो आपका टैक्सेशन का पेपर था उसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की पूरी बातें करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड थे, जितने भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यूज कवर्ड थे, क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट थे, कौन से चैप्टर्स वहाँ पे कवर्ड थे, हर एक चैप्टर का कितना वेटेज था, उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की क्या इफेक्ट देनी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर. Those who are going to appear from January 2026 attempt will see this particular video and will understand how ICI is, touching the corners of the sections, what they meant to say by this particular line. So this video is not actually for September 25 students. Please understand, this is not for your evaluation. आपका पेपर गया सो गया. अगर कोई September 25 का स्टूडेंट है जो उनकी एग्जाम्स खत्म होने से पहले ये वीडियो देख रहा है, डोंट सी द वीडियो, स्टॉप ओवर हियर इटसेल्फ. दिस वीडियो इज मेनली फॉर January 26 स्टूडेंट्स एंड देन ऑनवर्ड्स. दूसरा, यहाँ पे मैं जो ICI का पेपर आप लोगों को दिखाऊंगा, ये ऑब्वियसली स्टूडेंट ने हमें पास ऑन किया होता है, तो यहाँ पे जो भी उसने अपनी हैंडराइटिंग से लिखा है वो सब आप इग्नोर कीजिएगा. इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी द ट्रू थिंग्स. वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिंटेड थिंग्स एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसका जो डिस्कशन है वो करेंगे. उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स वगैरह कवर्ड है उसकी मैंने यहाँ पे एक समरी भी बनाई हुई है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के तौर पे मिल जाएगी. कौन से चैप्टर्स कवर्ड है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट, कौन से सेक्शंस, ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है. तो इट्स लाइक अ क्लियर कट सॉल्यूशन ऑफ द पेपर फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर ICI इशू द सजेस्टेड आंसर्स. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर September 25 का पेपर था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट पूछा है अब तक कि सर September 25 के बाद January 26 में कोई अमेंडमेंट है क्या. अरे बेटा, September 25, January 26 ये दोनों एक ही फिनेंशियल ईयर को रिफर करते हैं, दैट इज फिनेंशियल ईयर 24-25. सो लाइक दिस क्वेश्चन इन January 26 ऑल्सो, previous year will be 24-25, assessment year will be 25-26, two budgets will be applicable. Finance Act 2024 number 1, Finance Act 2024 number 2, which was issued on 23rd July 2024. Now, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शंस का डिस्कशन करेंगे एंड देन विल गो टू MCQs. The very first compulsory question was of 15 marks. Okay, it was a moderate question. It covered PGBP chapter mainly, तो 10 मार्क तो PGBP के ही थे 15 मार्क में से. अच्छे एडजस्टमेंट थे PGBP के, थोड़े डिटेल्ड, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रादर. एक दो मार्क का डिडक्शन, 2 मार्क का TDS थोड़ा इधर उधर था. अदरवाइज मेनली इट वॉज ऑन PGBP. Not too much difficult, by the way. Moderate question. Mr. Ram, who is a resident individual aged 58 years, so not a senior citizen, is engaged in the manufacturing of textile items. So a person who is a manufacturer, if he purchases new plant and machinery, we all know he will get additional depreciation at the rate of 20%. Statement of profit and loss shows a net profit after depreciation but before tax of 52 lakh for financial year ended on 31st March 25. Now this is something important. After debiting and crediting the following items. So whatever is given in point number 1 से लेकर point number 10, this all are already debited or credited in particular P&L. और हमें इसकी इफेक्ट देनी है in the net profit which is given 52 lakh. Then two more additional informations are there which are actually not dealt with by the P&L. We have to give the separate treatment if it is to be given. Now before you read the adjustment, you have to refer the last paragraph. You are required to compute the total income and tax liability of Mr. Ram under both taxation regimes, normal as well as 115 BAC, and suggest the one which is more beneficial to him. Ram prepare his accounts on mercantile basis. We all know that PGBP and IFOS taxable as per method of accounting followed by assessee, section 145. If books of account is prepared as per mercantile system, all the income will be taxable as and when it get accrued, all the expense will be deducted as and when it is getting due. Same is the case with IFOS. Okay, now our answer will always start with net profit as per PGBP, and that is 52 lakh. I'm not giving you the entire solution over here. We are just discussing each and every adjustment, that what effect is to be given. The very first thing, depreciation as per income tax rules, which is debited in the P&L 28 lakh, that include additional depreciation on new plant and machinery 1,50,000. So guys, what you are supposed to do over here, from 52 lakh rupees of your net profit, you are not
anyways you will not add anything over here. This is not depreciation as per books of account. This is depreciation as per income tax itself, and that is only debited to your P&L. And if it is already debited to P&L, including additional depreciation, you are not supposed to do anything. पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का टोटल इनकम ढूंढोगे, दैट इज 115 BSC, आपको ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है 1,50,000 वो एड बैक कर देना पड़ेगा, क्योंकि 115 BSC कैलकुलेट करते वक्त additional depreciation is not allowed as a deduction, only normal depreciation is allowed. So yes, यहाँ पे हमें इस एडजस्टमेंट का कुछ दूसरा करना नहीं है. इन ओल्ड रिजिम, इन 115 BSC 1,50,000 एड ऑन कर देना है. यही मैंने लिखा हुआ है, इन 115 BSC एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए. Interest amounting to 2,10,000 for the short payment of advance tax as per section 234B relating to assessment year 24-25. जब असेसमेंट ईयर 24-25 का कैलकुलेशन आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में किया होगा, तब आपको पता चला कि भाई एडवांस टैक्स पे करना था, रह गया. उसका जो भी इंटरेस्ट था 2,10,000 वो आप लोगों ने पे कर दिया, एंड वो आपने अपने P&L में डेबिट कर दिया. एज पर सेक्शन 40, इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग PGBP इनकम. If income tax is not allowed as a deduction, interest on income tax is also not allowed as a deduction. And income tax include TDS, TCS, advance tax. तो यहाँ पे ये जो 2,10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है जो PGBP में ऑलरेडी P&L में डेबिट करके रखा हुआ है, उसे हमें एड बैक कर देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन. तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन 40, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ऑफ इनकम टैक्स इज डिसअलाउड. 3,50,000 paid to a contractor for carrying out whitewash work at factory premise. Tax was not deducted at source on this payment, and the contractor did not file his return of income for the relevant previous year. Now please understand, as per section 194C, if any individual having turnover more than 1 crore in the preceding previous year pays any amount for any work contract to a contractor, obviously, but payment to a work contractor more than 1 lakh in the previous year will deduct TDS at the rate of 1%. यहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि इस पर्सन का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, तो इसको भी 194C एप्लीकेबल. और इसने कॉन्ट्रैक्टर को बिजनेस पर्पस के लिए 3,50,000 का पेमेंट किया है, तो ऑब्वियसली वो 1 लाख से ज्यादा हो रहा है. 1% TDS वॉज सपोज टू बी डिडक्टेड. इसने डिडक्ट नहीं किया. अगर इसने वो डिडक्ट नहीं किया तो एज पर सेक्शन 40 क्लॉज A सब क्लॉज 1A, if you don't deduct TDS during the year, even though it was required to be deducted, but you don't deduct the TDS during the previous year, yeah, you deduct the TDS, but you don't deposit the TDS up to 139 subsection 1 return filing, original return filing की due date. And if the payee is a resident person, then your 30% expenditure will be disallowed, and it will be allowed in the year in which you are properly deducting the TDS and depositing the same. यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम दैट पे इज अ रेजिडेंट पर्सन. वी हैव टू अज्यूम दैट लास्ट ईयर टर्नओवर वाज मोर देन 1 करोड़ एंड हेंस TDS वाज सपोज टू बी डिडक्टेड, which the person has not deducted the same. Entire expense will not be disallowed. 30% expense will be disallowed. So whatever is 30% of 3,50,000, that will be added back while calculating the PGBP income. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 40 clause A sub clause 1A. If any amount paid to resident without deducting TDS during the year or not deposited up to 139(1) की due date, 30% expense will be disallowed. Here we need to assume that last year turnover exceed rupees 1 crore. अगर ये जो पेई है वो नॉन रेजिडेंट होता तो 100% डिसअलाउड हो जाता, पर खैर यहाँ पे कुछ नहीं बोला, वी विल अज्यूम रेजिडेंट है एंड दैट्स वाई 30% डिसअलाउड. फिर और क्या डेबिट करके रखा हुआ है P&L में, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 3 लाख रुपीज paid by check. Now whatever is the contribution to Prime Minister National Relief Fund is an eligible deduction under section 80G, and that will be deducted after gross total income. But here to you have debited into your P&L. As per section 37 subsection 1 general deduction, only that expense can be allowed from PGBP which is related to your business or profession. Now this particular expenditure is not an expense related to business or profession, and hence it will not be allowed as a deduction. So in PGBP it will be totally disallowed. So 3 lakh rupees will be disallowed. 37 subsection 1. Any donation is not for business and hence disallowed. आप पर याद रखिएगा, साइंटिफिक रिसर्च है तो अलाउड इन ओल्ड रिजिम, सोशल रिसर्च के लिए है तो अलाउड, स्टैटिस्टिकल रिसर्च है तो अलाउड, बिकॉज सेक्शन 35 उसको स्पेसिफिकली अलाउ करता है.
अच्छा, ये जो आपने डिसअलाउ किया पीजीबीपी में, इट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G इफ यू आर फॉलोइंग ओल्ड रिजिम। इफ यू फॉलो 115 बीएसी, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम 115 बीएसी का कैलकुलेशन करेंगे, ये एडबैक जरूर होगा पर 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, इन ओल्ड रिजिम यू विल गेट 80G का डिडक्शन कितना, 100% विदाउट लिमिट, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंड है वो गवर्नमेंट का फंड है जो पहली कैटेगरी में आता है, 100% विदाउट एनी अपर लिमिट। सो एडबैक करेंगे एंड 80G में माइनस करेंगे, 115 बीएसी में एडबैक करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद expenditure toward advertisement charges in a brochure of a political party registered under section 29A of Representation of People Act 1951, 40,000 paid by check. Now, as per section 37 subsection 2B, any advertisement expense paid to a political party will be disallowed. तो ये जो 40,000 है वो हम क्या करेंगे, पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करते वक्त एडबैक कर देंगे। नाउ एज पर सेक्शन 80GGB, if you are an Indian company donating to political party, and here donation includes advertisement expense paid to political party, then 100% deduction will be allowed to that Indian company under section 80GGB. But this person is not an Indian company, na? The person is an individual. Now if the person is an individual, political party का section आता है 80GGC, but 80GGC सिर्फ एक ही चीज का डिडक्शन देता है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। इट डोंट गिव डिडक्शन फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो यहां पे सिर्फ एक ट्रीटमेंट आएगी, दिस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विल बी एड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी इनकम, इट वॉन्ट बी अलाउड अंडर 80GGC। ये हमने जब पढ़ा था तब 2-3 बार डिस्कशन किया था। 37 सबसेक्शन 2B, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड टू पॉलिटिकल पार्टी विल बी डिसअलाउड, एड बैक कर दो, but it will not be allowed in 80GGC because to an individual only donation is allowed as a deduction, not advertisement expense. Then interest on term loan obtained from a cooperative bank not paid before the due date of filing return, 2,60,000. Now this is section 43B. Any interest which you are paying to a bank or cooperative bank, rather NBFC, then all those interest will be disallowed if it is not paid up to 139 subsection 1 का due date. This is not paid up to 139 1 का due date and hence this 2,60,000 will be add back. तो 43B के हिसाब से ये जो इंटरेस्ट है वो disallowed हो जाएगा। वो उस साल जाके माइनस मिलेगा जिस साल पर्टिकुलरली आपने उसे पे किया। Contribution toward pension scheme of employee 1,50,000. The eligible salary and DA for the pension scheme under 80CCD is rupees 10 lakh. Now this was an amendment from previous year 24-25. इसे important भी टिक करवाया गया था क्लास में। सेक्शन 36 के हिसाब से if you are an employer, you are contributing to the pension scheme of employee under 80CCD, you will get a deduction, but that deduction will be maximum 14% of salary. Here salary means basic plus DA percentage. Your salary over here is 10 lakh, 14% will become 1,40,000. Deduction will be available only 1,40,000. You have paid 1,50,000, so excess 10,000 will be disallowed, and the disallowance will be as per section 40A subsection 9. तो section 36 के हिसाब से 1,40,000 is allowed, section 40A subsection 9 के हिसाब से 10,000 क्या हो जाएगा, disallowed. तो यहाँ पे section 36 contribution to NPS will be eligible for 14% of salary, excess will be disallowed under 40A subsection 9. Industrial power tariff concession of 2,50,000 received from central government. Now क्या ये इनकम देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई पर्टिकुलरली अदर इनकम है? अरे ये तुम्हारे बिजनेस की ही तो इनकम है। यू आर मैन्युफैक्चरर, तो इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन मिला 2,50,000। सेक्शन 28 क्लॉज 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। It is not profit, it is one kind of gain of your business. It is taxable under PGBP. ये ऑलरेडी तुमने अपने P&L में क्रेडिट करके रखा हुआ है और इसलिए इसका दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस एडजस्टमेंट यू नीड टू इग्नोर। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, दिस इज़ अ पेपर रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट, बिकॉज ICAI ने अब तक इसे अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जितनी भी साइन की हो, प्लस माइनस कुछ अमाउंट उन्होंने मैन्युअली लिखी हो, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए, वो सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ प्रिंटेड चीज़ों पे फोकस करना है। तो यस, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ जो है 2,50,000 का, उसे हम कुछ नहीं करेंगे, वो बराबर क्रेडिटेड है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेक्शन 28, वो पीजीबीपी की ही इनकम है।
इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स ऑन फिक्स डिपॉजिट इनटू ब्रैकेट ग्रॉस 1,50,000। जनरली कुछ ना बोला हो तो एफडी का इंटरेस्ट कहाँ पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस। तो इसकी दो ट्रीटमेंट हम लोग क्या देंगे, पीजीबीपी में से 1,50,000 माइनस करेंगे, आईएफओएस में जाके 1,50,000 ऐड करेंगे। एक तीसरी भी ट्रीटमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रॉस, तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि इस अमाउंट में से टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा। यहाँ पे उन्होंने ग्रॉस अमाउंट लिखी है, हम इनकम में भी वहीं ऐड करेंगे, पर इसका जो 10% के हिसाब से सेक्शन 194A का टीडीएस है दैट इज 15,000, वो टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते वक्त उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो तीन इफेक्ट आएगी, पीजीबीपी में से माइनस होगा, आईएफओएस में ऐड होगा, और ग्रॉस वर्ड लिखा है इसलिए 10% टीडीएस जो है 15,000 वो हम टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। कैश गिफ्ट फ्रॉम फादर 90,000, ये भी तुमने अपने पीएनएल में क्रेडिट करके रखा हुआ है। नाउ एनी गिफ्ट if it is not in relation to the business then it will be taxable under IFOS. सी एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिले तो परक्विजिट हो गया, सैलरी में टैक्सेबल होगा। कस्टमर या सप्लायर से गिफ्ट मिले तो ये बिजनेस बेनिफिट हो गया, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। पर किसी और पर्सन से गिफ्ट मिलती है तो वो हमेशा कहाँ पे टैक्सेबल होता है, आईएफओएस। सेक्शन कौन सा है उसका, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। अरे पर ये जो गिफ्ट है वो पहले तो चलो ये पीजीबीपी की तो इनकम है ही नहीं, आईएफओएस में जाएगा, तो पहली इंपैक्ट क्या आएगी, पीजीबीपी में से माइनस करो। पर कहने से ये गिफ्ट जो है वो तुम्हें अपने रिलेटिव से मिली, लीनियल असेंडेंट से मिली, एंड दैट्स वाई आईएफओएस में भी ये टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। तो इसकी सिर्फ एक ही इंपैक्ट आएगी, पीजीबीपी में से माइनस होगा, आईएफओएस में ये ऐड करने का नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 allowed on a due basis but paid in the current financial year in cash on 18th January 25, 35,000. Now there is a section 40A subsection 3 जो क्या बोलता है, if any amount paid to a single person in a single day exceeding rupees 10,000 otherwise than by account pay check, account pay draft, ECS या other electronic mode, entire expense will be disallowed. सवाल आता है what if the expenditure is allowed in some earlier years as per accrual basis, पेमेंट के बिना, तो वो तो माइनस मिल गया। अब तो क्रेडिटर है उसको हमने 10,000 से ज्यादा एक ही दिन में कैश में पेमेंट कर दिया, अब डिसअलाउड थोड़ी होगा। मैं क्लास में हमेशा दो चीजें बोलता हूँ बेटा, इस साल का खर्चा इस साल अगर हम एड बैक करें तो वर्ड यूज करने का डिसअलाउड, पिछले सालों के खर्चे को इस साल अगर हम एड बैक करें तो वर्ड यूज करना होता है डीम्ड इनकम। तो ये पिछले साल का खर्चा था 23-24 का, जो इस साल तुम अपनी इनकम में एड ऑन करने जा रहे हो, तो ये जो 35,000 है ये क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम। सेक्शन है 40A सबसेक्शन 3A, क्योंकि 10,000 से ज्यादा क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया एक ही दिन में, तो ये पूरा 35,000 तुम्हें पीजीबीपी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एज व्हाट, डीम्ड इनकम। सेक्शन कौन सा, 40A सबसेक्शन 3A। ऑडिट फी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 75,000, जो 30,000 से ज्यादा है, तो किसी को भी प्रोफेशनल फी 30,000 से ज्यादा पे करो तो 194J के अंदर 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपोजिटेड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इट इज डिपोजिटेड ऑन 31 December 2024। अच्छा अभी एक चीज समझो, तुम्हारा जो खर्चा था 23-24 का, उसका तुमने टीडीएस 23-24 में डिडक्ट कर दिया, बराबर किया, पर वो डिपॉजिट कब तक करना था, अप टू ड्यू डेट ऑफ 139/1। 23-24 की जो ड्यू डेट है, अगर ऑडिटेड नहीं हो तो 31 जुलाई 24, ऑडिटेड हो तो 31 अक्टूबर 24। तुमने ये टीडीएस डिपॉजिट कब करवाया, 31 अक्टूबर 24 के भी बाद, 139/1 की ड्यू डेट के बाद। तो कहने से पेई तो ऑब्वियसली रेजिडेंट होगा, ऑडिट फी की बात हो रही है, तो 23-24 में इस 75,000 का 30% तुम्हें डिसअलाउड हो गया होगा, सिर्फ 70% अलाउड हुआ होगा। वो जो डिसअलाउड हुआ वो कौन से साल में माइनस मिलता है, द ईयर इन विच टीडीएस इज प्रॉपर्ली डिपोजिटेड, जो तुमने कब डिपॉजिट करवाया, 24-25। तो 75,000 का जो 30% एक्सपेंस है 22,500, जो तुम्हारा 23-24 में डिसअलाउड हो गया था, वो अब तुम्हें कब माइनस मिलेगा, 24-25 में। पीजीबीपी में हमने ये माइनस नहीं किया हुआ है, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या इंपैक्ट देनी है, 75,000 का 30% हमें पीजीबीपी में से क्या करना है, माइनस करना है। So if any amount paid to resident without deducting TDS or TDS not deposited up to 139/1, 30% will be disallowed. It will be allowed in the year in which it is deducted and deposited. So 30% of 75,000, it's my bad over here.
30% of 75,000 disallowed in that year. Now it will be allowed in which year? 24-25. Are you getting this people? तो ये सब प्लस माइनस करके यू विल गेट योर पीजीबीपी इनकम. फिर आईएफओएस की भी यहाँ पे एक बैंक एफडी इंटरेस्ट करके जो इनकम है वो दी गई थी, तो दैट यू विल ऐड. दूसरे कोई हेड की इनकम है नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा. फिर यू विल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें आपका ATG का डिडक्शन है 3 लाख रुपीज़, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वाला. एंड यहाँ पे दूसरा कोई डिडक्शन एनीवेज है नहीं, तो यू हैव दैट वन डिडक्शन एंड यू विल गेट योर टोटल इनकम, जिस पे आप ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करोगे. एंड अगर वो टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर होगी अगर, तो 10% सरचार्ज भी आएगा, दैट यू टेक केयर. फिर आप वही टोटल इनकम का बेस बनाओ और आप डिफॉल्ट रिजिम यानी 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेट करो. अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,50,000 एड बैक कर देना पड़ेगा, क्योंकि 115 BAC में ये माइनस नहीं मिलता. दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये 3 लाख का डिडक्शन जो आपने ATG का लिया हुआ है वो भी एड बैक कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 115 BAC में माइनस नहीं मिलता. अदर ऑल रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन एज इट इज़. और उसमें आपका टैक्स पेबल जो कंप्यूटेशन है वो रेट्स वगैरह बदल जाएंगे. ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये कुछ काम की नहीं है. दे हैव गिवन इज इररिलेवेंटली, तो ये कोई काम की नहीं है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में. आप उल्टा भी कर सकते हो. आप पहले डिफॉल्ट रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट करो, फिर वो डिडक्शन माइनस करो जो ओल्ड रिजिम में अलग से मिलते हैं. यू कैन डू एनीवेज. 15 मार्क का क्वेश्चन था. जिन्होंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, नोट्स वगैरह प्रॉपरली रिफर की है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता. ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 2A, 6 मार्क का ये क्वेश्चन है. टोटली डिपेंडिंग ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम. मैं कुछ चीजें पहले रिवाइज करवा लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ये क्वेश्चन में. नॉर्मल प्रोविजन क्या रहता है? अगर हम इंडिया में रहते हैं फॉर मोर देन 182 डेज वी आर रेजिडेंट, या तो इंडिया में रहते हैं फॉर मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग द ईयर एंड मोर देन 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो भी हम बन जाएंगे रेजिडेंट. अगर हम रेजिडेंट है तो हमें चेक करनी है 2 एडिशनल कंडीशंस. पॉजिटिवली बोलूँ तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो यू विल बिकम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. दोनों में से कुछ एक आधी भी फुलफिल ना हुई तो यू विल बिकम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? प्रीसीडिंग 7 ईयर्स का स्टे इन इंडिया होना चाहिए एटलीस्ट 730 डेज. दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? पीछे के 10 सालों में आप होने चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया. पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है. इफ यू आर इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन, will not check 60 or plus 365 वाली condition, will check only 182 days की condition. Second, if you are an Indian citizen working as a crew member of Indian ship going outside India, आपके लिए भी सेम 182 डेज का ही क्राइटेरिया चेक करेंगे, 60 plus 365 चेक नहीं करेंगे. थर्ड एडिशनल कंडीशन, यू आर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यू आर कमिंग टू विजिट इंडिया, तो पहले चेक करेंगे 182 डेज. सेटिस्फाई हुआ तो बहुत बढ़िया, यू आर रेजिडेंट. 182 डेज सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे व्हाट इज योर इंडियन इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम. अगर वो 15 लाख तक है तो अगेन यू आर अ नॉन रेजिडेंट. अगर वो 15 लाख से ज़्यादा है तो हम और एक कंडीशन चेक करेंगे, 120 ड्यूरिंग द ईयर, 365 इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स. और अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो आप सीधा क्या बन जाओगे? RBNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. एक लास्ट केस भी है जिसे हम बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट. सेक्शन है 6, सबसेक्शन है 1A. आप नॉन रेजिडेंट हो एज पर ऑल अदर कंडीशन, और आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है एंड यू आर नॉट सपोज टू पे द टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, तो नंबर ऑफ डेज देखेंगे ही नहीं, हम आपको सीधा बोल देंगे RBNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? इंडियन इनकम यानी 5 इनकम. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. अब ये क्वेश्चन रिफर करते हैं. Swetha, a citizen of India, is a chartered accountant. She is working partner in Swetha and Varun Associate, which was set up in Chennai. She visits foreign country A quite often and provides accounting service to corporates there in her individual capacity. In country A, she is not subject to any income tax. तो वो दूसरी कोई country में tax नहीं भर रही है. There is a hint of the fourth special case. The details of her income for financial year 24-25 is as follows.
कौन सी इनकम इंडियन इनकम है वो लिखते जाएंगे। रेम्यूनरेशन फ्रॉम हर सीए फर्म इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया 16 लाख, डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द फर्म। तो कहने से ये तो अक्रूड इन इंडिया हो गया, तो यस ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम आप देख ही सकते हो 15 लाख से ज़्यादा है। एंड कोई भी रेम्यूनरेशन जो सीए फर्म से मिलता है, पार्टनरशिप फर्म से मिलता है, वो रेम्यूनरेशन कहाँ पे टैक्सेबल होता है, हमेशा पीजीबीपी में। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विस इन कंट्री ए, रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट इन कंट्री ए 5 लाख। कैन आई से इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो दिस इनकम इज अ फॉरेन इनकम, इट इज नॉट इंडियन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इंकॉर्पोरेटेड इन कंट्री ए, रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री ए 8 लाख रुपीस, अगेन अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी हो गई फॉरेन इनकम। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कंट्री ए विच वॉज सेटअप इन कंट्री ए, कंट्रोल्ड फ्रॉम चेन्नई। अब कोई भी इनकम जो इंडिया से कंट्रोल होती है वो इंडियन इनकम मानी जाती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ इंडियन इनकम। तो अगर हम देखें तो इसकी इंडियन इनकम कितनी हो रही है, 16 लाख एंड 4 लाख, तो दैट कम्स टू 23 लाख। ऑब्वियसली ये 15 लाख से ज़्यादा हो गया। असर्टेन हर रेजिडेंशियल स्टेटस ब्रीफली, एक्सप्लेनिंग रेलेवेंट प्रोविजन अलॉन्ग विद द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन द 3 डिफरेंट सिचुएशन। पहला, शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो कहने से बाकी हर एक कंडीशन के हिसाब से तो ये नॉन रेजिडेंट है, पर है तो इंडियन सिटीजन। इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। शी इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। सारी कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A की फुलफिल हो गई। ये बन गई सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड इफ यू आर RBNOR तो आपको जो भी इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होती है। 5 चीज़ें RBNOR को टैक्सेबल इन इंडिया: रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो पहले केस में ये हो जाएगी RBNOR, और 23 लाख रुपया क्या हो जाएगा इंडिया में टैक्सेबल। दूसरा इंडिपेंडेंट केस, शी विजिट एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 200 days एवरी ईयर सिंस 12 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग 24-25। अभी चौथे एक्सेप्शनल केस में तब जाना होता है जब आप दूसरे सारे केसेस से बच जाते हो, बट यहाँ पे वो इंडिया आती है, हर साल 200 डेज वो यहाँ पे रहती है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा थर्ड एक्सेप्शनल केस। थर्ड एक्सेप्शनल केस इन माई लैंग्वेज मीन्स इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। सबसे पहले चेक करो वेदर शी स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज, यस 200 डेज, तो ये हो गई रेजिडेंट। अब चेक करनी होती है 2 एडिशनल कंडीशंस। पहला कंडीशन एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पीछे के 7 सालों का टोटल होना चाहिए एटलीस्ट 730 डेज। यहाँ पे हर साल वो 200 डेज रह रही है, तो 7 सालों में तो 1400 डेज रहती है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, शी शुड बी रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब वो हर पीछे के सालों में 200-200 दिन यहाँ पे रहती थी, तो वो हर एक सालों में वो रेजिडेंट थी, क्योंकि 182 डेज से तो ज़्यादा ही था। तो मुझे तो सिर्फ 2 बार रेजिडेंट चाहिए, ये तो पीछे के 10 साल में रेजिडेंट है, तो दूसरी एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो अब ये क्या बन गई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड बेटा इफ अ पर्सन इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे कहीं पे भी रिसीव हुई हो, चाहे कहीं पे भी अक्रू हुई हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो दूसरे केस में R&OR है तो 16 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख, ये सारी इनकम उसे यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कि पहले केस के जैसा चौथा केस अब हमें देखना है, पर उसका जो 16 लाख का इनकम था ना प्रोफेशन का रेम्यूनरेशन, वो अब 4 लाख अगर हो जाए, तो कहने से वो इंडिया में आ ही नहीं रही है, तो बाकी सारे केस के हिसाब से तो नॉन रेजिडेंट है। अब अगर उसकी ये पहली इनकम सिर्फ 4 लाख है, तो इंडियन इनकम कितनी होगी, ये 4 लाख प्लस ये 7 लाख, टोटल 11 लाख, जो 15 लाख या उससे तो कम है। और अगर ये 15 लाख या उससे कम है तो ये चौथे एक्सेप्शनल केस में भी कवर नहीं होगी, शी विल बिकम नॉन रेजिडेंट। नाउ इफ शी इज अ नॉन रेजिडेंट, उसे सिर्फ 4 इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, नॉट इंडियन इनकम, उसे सिर्फ 4 इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है: अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। कंट्रोल्ड इन इंडिया वाला पॉइंट नॉन रेजिडेंट को नॉट टैक्सेबल, जो RBNOR को टैक्सेबल था। तो इस केस में अगर ये पर्सन नॉन रेजिडेंट बन जाती है तो इसको सिर्फ एक ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, पहले वाला जो अक्रूड इन इंडिया है, पर वो भी कितना, 4 लाख, क्योंकि उसमें अजम्पशन लिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
6 मार्क के लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आई अग्री, बट इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आपको इन डेप्थ आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है तो आसान था। अच्छा, ये जो बी वाला पॉइंट है 4 मार्क का, दैट इज टोटली ऑन TDS चैप्टर। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पे 2A के अंदर लिखा भी है, 6 मार्क का क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस। मैंने जो समझाया वो सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आर्यन, a resident individual engaged in the retail trade of auto parts through various stores across Delhi NCR, had a turnover of 15 crore in the year 23-24. लास्ट ईयर इसका टर्नओवर आप अगर देखेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा है। The following data is furnished for the year 24-25. He purchased goods worth rupees 105 lakh, excluding GST at the rate of 18%, on 21st May 2024 from Diva LLP, a LLP resident of India. Out of this purchase, goods worth rupees 5 lakh excluding GST were returned on 20th July 24 due to quality issue, for which Diva LLP refunded the money on 20th February 25. Assume that turnover during the year 23-24 of Diva LLP is only 8 करोड़। अब देखिए समझिए, जो बायर है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, जो सेलर है वो एक रेजिडेंट सेलर है, और वो जितना गुड्स परचेज कर रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा है। TDS आएगा 194Q, 50 लाख के ऊपर 0.1%। कब TDS डिडक्ट होता है? पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस कब आया? 21 मई। कितने का आया? एक्सक्लूडिंग GST 105 लाख, क्योंकि इनवॉइस के वक्त हम लोग GST के पहले की फिगर देखते हैं। 105 लाख 50 लाख से ज्यादा है, 0.1% TDS डिडक्ट होगा 50 लाख के ऊपर की अमाउंट का। 55 लाख का 0.1%, उतना TDS हमने डिडक्ट कर दिया। अब सवाल आता है कि सर जो 5 लाख के गुड्स रिटर्न कर दिए, TDS तो पूरे पे डिडक्ट कर दिया था, उसका क्या करना है? टेक्निकली जो 5 लाख के गुड्स रिटर्न किए, क्या नहीं से उसका TDS हमने ज्यादा डिडक्ट कर लिया, तो क्योंकि उतना परचेज अब है ही नहीं, सिर्फ 100 लाख का परचेज है, जबकि हमने तो 105 पे TDS डिडक्ट किया। उतने TDS को 5 लाख का जो 0.1% TDS है, अगर इसी फिनेंशियल ईयर में हम दूसरा 5 लाख का कोई परचेस करें तो वो TDS उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट परचेजिंग एनी फर्दर गुड्स। तो ये जो 5 लाख के गुड्स रिटर्न हुए हैं उसका भी दूसरा कुछ करना नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। भले आपने 105 लाख पे TDS डिडक्ट कर दिया और भले उसमें से 5 लाख के गुड्स रिटर्न हो गए, आपको कुछ दूसरी इंपैक्ट इसमें नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैंने वही पूरी चीज़ लिखी हुई है विथ ऑल दी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आर्यन पेड 77,000 एवरी मंथ टू कुलवीर, a resident individual, for providing catering service in his shop under a contract. Catering is covered within the definition of work as per section 194C. As per 194C, if you are an individual, last year turnover is more than 1 करोड़, जो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। किसी को कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करो, सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा, पूरे साल का 1 लाख से ज़्यादा, जो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरे साल का 1 लाख से ज़्यादा है। और अगर जो पेई है वो इंडिविजुअल या HUF है, पूरे अमाउंट पे 1% TDS विल बी एप्लीकेबल। तो हर महीने आपको 77,000 का 1% TDS 194C के हिसाब से डिडक्ट करते जाना पड़ेगा। पूछा था क्या? डिस्कस TDS TCS इफ पेन ऑफ ऑल द कंसर्न पार्टीज आर अवेलेबल। ठीक है, अगर मैं दूसरा पूछता हूँ, व्हाट इफ ये दोनों ही केस में जो सेलर है वो अपना पेन नहीं देता, तो 194Q में हम 0.1% की जगह डिडक्ट करते थे 5%, वहाँ पे एक्सेप्शन है। एंड 194C में हम सीधा डिडक्ट कर देते थे 20%। पर यहाँ पे तो खैर पेन दिया हुआ है, इसलिए जो नॉर्मल रेट है वहीं अप्लाई होंगे। तो ये मैंने 194C यहाँ पे लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A, 6 मार्क का क्वेश्चन है। कैपिटल गेन का जो अमेंडमेंट है ना, उसके ऊपर है ये। और ये मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाया था, बोला भी था क्लास में 2-3 बार, ढेर सारे सम्स किए थे हमने, और मैंने बोला था कि ये डैम इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इट इज अ प्योर अमेंडमेंट फ्रॉम योर अटेम्प्ट। मिस्टर मणि, a resident individual aged 45 years, acquired a plot of land in March 2002 for 12,25,000, paid stamp duty of 1 lakh on registry of the land, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 13,25,000, और इसने परचेस कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया? 2001-2, क्योंकि मार्च 2002 है।
ही सोल्ड दिस लैंड ऑन 10th October 24 यानी 23 जुलाई 24 या उसके बाद फॉर 80 लाख. स्टैंप ड्यूटी असेस्ड बाय सब रजिस्ट्रार इज 83,50,000. अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल वैल्यू 80 लाख है, स्टैंप ड्यूटी 83,50,000 है. ओके. एडवाइज मनी अबाउट विच ऑप्शन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिम as far as his tax liability is concerned, on the assumption that he has no other income chargeable to tax and has not opted out of provision of 115 BAC. CII भी दिए हुए. दो तीन चीज जो आपको खास याद रखनी है. अगर कोई भी लैंड या बिल्डिंग आप 24 महीने के बाद सेल आउट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो यहां पे ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गया. अगर आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो 23 जुलाई 24 या उसके बाद, तो वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रांसफर की डेट है 10th October. तो जब हम कैपिटल गेन की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जो प्योर हमारा 13,25,000 का कॉस्ट है वही माइनस होगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. एज पर सेक्शन 50C, इफ यू ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग एंड योर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल वैल्यू, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बिकम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू. यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 80 लाख है, स्टैंप ड्यूटी 83,50,000 है. 80 लाख का 110% कितना होता है? 88 लाख. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं है, तो हमारी यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? 80 लाख. और 80 लाख में से हम लोग कॉस्ट माइनस करेंगे 13,25,000, जो बच जाएगा वो हमारा कैपिटल गेन, और वही हमारी टोटल इनकम. और वो टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 10% सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, ये मत भूलिएगा. पर सवाल आता है सर टैक्स कितना लगेगा? तो 80 लाख में से 1325 माइनस करके हमारा जो भी फिगर यहाँ पे बच जाता है, उस कैपिटल गेन पे हमें सीधा कैलकुलेट कितना कर देना है? 12.5%. बराबर? नहीं. दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है. पहला, आपकी दूसरी कोई टोटल इनकम है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन की ही टोटल इनकम है, तो सीधा उस पर थोड़ी 12.5% कैलकुलेट करोगे. आपको शिफ्टिंग बेनिफिट भी तो मिलेगा, क्योंकि आपकी जो स्लैब रेट इनकम है 2.5 लाख तक की, वो आपने यूटिलाइज ही नहीं की, बेसिक स्लैब आपका, तो वो 2,50,000 आप माइनस करो और बाकी की अमाउंट पे क्या कैलकुलेट करो? 12.5%. जो सबसे पहली चीज आप भूल सकते हो वो है शिफ्टिंग बेनिफिट. बाकी के अमाउंट पे 12.5% तो कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है. एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन? अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल HUFO 23 जुलाई के पहले आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करी थी, पर 23 जुलाई 24 या उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हो, इनकम ढूंढा जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन. पर जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो सेक्शन 112 क्या बोलता है? दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट करो. एक विदाउट इंडेक्सेशन, उस पर 12.5% जो मैंने अभी अभी बताया शिफ्टिंग बेनिफिट लेने के बाद. दूसरा रीकैलकुलेट करो विथ इंडेक्सेशन, जैसे कि इंडेक्सेशन है, रीकैलकुलेट करो. 80 लाख का FVOC माइनस 13,25,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर 24-25 उसका 363 डिवाइड बाय ईयर ऑफ परचेस 2001-2 उसका 100. वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके जो आएगा उसमें से शिफ्टिंग बेनिफिट माइनस करो. अब उस पर कितना अप्लाई करो? 20%. व्हाट विल बी द फाइनल बेसिक टैक्स? दोनों में से विच एवर इज लोअर. ये ऑप्शन दिया गया है रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF को फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स, नॉट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम. तो इनकम ढूंढी जाएगी विदाउट इंडेक्सेशन. टैक्स ढूंढते वक्त आपको दोनों ही ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए रीकैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल गेन. पर यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग बेनिफिट मत भूलिएगा. अच्छा, विच एवर इज लोअर करके आपका जो भी टैक्स आएगा उस पर कंपलसरी 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा थी, और वो ऐड करने के बाद 4% सेज ऐड कर दो. दैट विल बी द टैक्स पेएबल. समझ में आ रहा है पीपल? ओके. ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है लेक्चर्स के अंदर, और इस पे ढेर सारे हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं. देन 4 मार्क का क्वेश्चन है सैलरी चैप्टर का. अच्छा सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी 4 मार्क के कंपैरिजन में. प्रभु, a resident individual aged 45 years, I know who is coming into your mind, is employed with a private limited company as HR manager on a basic salary of 80,000 per month. He has provided with the following other benefits. तो बेसिक सैलरी तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा, पर हमें ढूंढना क्या है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रभु अज्यूमिंग ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजिम यानी ओल्ड रिजिम, एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है सैलरी के क्वेश्चन में.
तो आपको एक लिंक आनी चाहिए कि अकोमोडेशन में हमने एक ऐसा रूल पढ़ा था कि अगर किसी को 23-24 में अकोमोडेशन दिया और वही कंपनी उसी एम्प्लॉय को वही अकोमोडेशन 24-25 में भी दे रही है, तो परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी एज पर द वैल्यूएशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ दैट इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ 23-24 विच एवर इज लोअर। इसलिए शायद ये डेटा उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और इसके क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे सॉल्व। एक के बाद एक पढ़ते हैं कि ये कंपनी इसको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी इन मुंबई, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी सिटी हो गई इंडिया की, फ्रॉम 1 मई 2024। घर कब से दिया? 1 मई 24 से। अरे यार, इसको पहली बार घर मिल रहा है 24-25 में, 23-24 में इसको घर दिया ही नहीं था, तो वो इंडेक्सेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा ही नहीं। ये फालतू की इंफॉर्मेशन देके रखी है। अच्छा, हाउएवर ही ऑक्यूपाइड द अकोमोडेशन ओनली फ्रॉम 1 दिसंबर 24। ये सेम मॉड्यूल वाला क्वेश्चन हो गया। कंपनी ने पहले 1 मई से इसको घर दिया, ये ऑक्यूपाई कर रहा है 1 दिसंबर से, तो हम जो परक्विजिट की वैल्यूएशन करेंगे वो सिर्फ 4 महीने की करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। The company had bought this house in financial year 23-24 at a cost of 2 करोड़। ये लाइन हमें ये बताती है कि ये घर एम्प्लॉयर का हायर्ड नहीं है, ओन्ड है। इफ यू रिमेंबर रूल 3 सब रूल 1, इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर and the population of the city is more than 40 lakh, then the perquisite value will be 10% of the salary. What is the meaning of salary for this purpose? तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए, परसेंटेज, ऑल काइंड ऑफ कमीशन, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। जब तक हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, हमें सारे टैक्सेबल अलाउंसेस का पता नहीं चलेगा, तब तक हम इस एडजस्टमेंट का आंसर ढूंढ नहीं सकते। तो अभी के लिए हमें इस एडजस्टमेंट को पेंडिंग रखना पड़ेगा, पहले बाकी सब कैलकुलेट होगा फिर ये कैलकुलेट होगा। देन अ मोबाइल फोन हिज पर्सनल यूज ऑन 1 अप्रैल 24, द फोन की कॉस्ट है 90,000। कंपनी ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए मोबाइल फोन दे दिया। 4 चीजें जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है वो नॉट टैक्सेबल है, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। तो मोबाइल फोन जो यूज के लिए दिया उसका कुछ टैक्सेबिलिटी आएगा नहीं। Company also gave him a telephone allowance of ₹1,000 per month to cover his telephone mobile bill. During the year, aggregate mobile phone bill was 15,000. चाहे कितनी irrelevant information क्वेश्चन में दी है, आप अपने प्रोविजन पे ग्रिप बनाए रखिए। टेलीफोन अलाउंस हमेशा होता है टैक्सेबल, ये मैंने अपनी नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, तो 1,000 पर मंथ यानी कि 12,000 क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। जबकि ये 90,000 का कुछ भी हमें करना नहीं है, ये 15,000 का भी कुछ नहीं करना है, 12,000 हो जाएगा टैक्सेबल। पर याद रखिए, पहले एडजस्टमेंट के लिए ये काम का है, क्योंकि इसमें सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस भी आता है। तो जो 4 महीने की हम सैलरी कंप्यूट करेंगे, वो 4 महीने की सैलरी जब हम ढूंढेंगे तो 80,000 तो आएगा, प्लस ये भी 1,000 उसमें ऐड होगा। Company had purchased a car on 1st July 22 for rupees 10 lakh. This car is sold to Prabhu on 1st August 24 for 2,50,000. It is a perquisite, not an allowance. Sale of movable asset. और अगर वो मोटर कार है तो क्या करना होगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जितने साल कंपनी ने उसे यूज किया, वो हर साल का 20% WDV से डेप्रिसिएशन माइनस करो, माइनस रिकवरी। अगर पॉजिटिव अमाउंट बचती है तो इट विल बिकम टैक्सेबल। 1 जुलाई 22 को खरीद के 1 अगस्त 24 को आप अपने एम्प्लॉय को ये चीज़ बेच रहे हो, यानी एज एन एम्प्लॉयर आपने कितने साल इसे यूज़ किया? 2 साल। तो 2 साल का 20% WDV मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 10 लाख का पहला 20% माइनस होगा तो इट विल बिकम 8 लाख, उसमें से WDV के हिसाब से दूसरा 20% माइनस होगा, तो 8 लाख माइनस 1,60,000, तो 8,60,000 इट विल बिकम समवेयर 6,40,000। और ये जो 6,40,000 है उसमें से 2,50,000 की रिकवरी हम लोग माइनस करेंगे, तो बाकी की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? परक्विजिट के तौर पे टैक्सेबल। पर ये भी हमारी वो पहले एडजस्टमेंट के काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमें परक्विजिट ऐड नहीं करना है, सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करना है। He was allowed to use the video camera and laptop belonging to the company from 1st April. Company had purchased this asset for 50,000 and 2 lakh respectively 2 years back. 4 चीज़ें जो आप अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने को देते हो वो टैक्सेबल उसे नहीं होता। कौन सी 4 चीज़ें? मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। मोबाइल ऊपर आ गया, लैपटॉप यहाँ पर है, तो ये लैपटॉप भी तो टैक्सेबल नहीं होगा।
पर वीडियो कैमरा तो टैक्सेबल होगा, ये यूज ऑफ मूवेबल असेट हो गया। और अगर वो असेट कंपनी की खुद की है तो वैल्यूएशन रूल क्या बोलता है, रूल 3 सब रूल 7, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। वीडियो कैमरा का ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, तो उसका 10% यानी कितना परक्विजिट टैक्सेबल होगा, 5,000। पर वंस अगेन ये पॉइंट भी आपको पहले पॉइंट के काम में नहीं आएगा, ये सिर्फ सैलरी में ऐड होता जाएगा। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम ये पहले पॉइंट पे जाएंगे, उसमें क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ 4 महीने की एक सैलरी ढूंढेंगे, क्योंकि परक्विजिट टैक्सेबल सिर्फ 4 महीने का है। हमारे पास डीए नहीं है, कमीशन नहीं है, बोनस नहीं है, लीव एनकैशमेंट नहीं है, काम का सिर्फ क्या है, बेसिक प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंस में क्या था, 1,000 रुपया टेलीफोन अलाउंस। तो एक महीने की सैलरी 81,000, ऐसे 4 महीने का हमें ढूंढना है। तो वॉट एवर विल बी द 4 महीने की सैलरी, उसका 10% हमारा अकोमोडेशन का परक्विजिट, और ये सब का टोटल करो, दैट विल बिकम योर ग्रॉस सैलरी। और जो आप शायद भूल जाओ, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ये पर्सन ओल्ड रिजिम में है, तो ग्रॉस सैलरी में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भूलने का नहीं। ये जितनी भी चीज़ मैं बोला वो सब यहाँ पे डिटेल्ड में मैंने लिख के दिया हुआ है, सब डिटेल्ड में एकदम एक एक पॉइंट। 6 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4A, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सुरभि, a resident individual aged 35 years, is a working partner in 2 firms A and B, engaged in the retail business of garment. She provide following details of her income losses. सारा क्वेश्चन है, डिटेल्स है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, ब्रॉड फॉरवर्ड में 2 लॉसेज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, दैट इज रेस हॉर्सेस। पूछा क्या है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम एंड लॉस दैट कैन और कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड assuming she has opted out of default regime, old regime. Will your answer be different in case she does not opt out of default regime, यानी she remains in default regime? There is no need to compute tax payable under any of the regime, सिर्फ टोटल इनकम दोनों regime की ढूंढनी है बेसिकली। ठीक है, एक एक करके चीजें पढ़ते हैं, किसके सामने क्या सेट ऑफ हो सकता है वो देखेंगे। Remuneration received as a partner from partnership firm A, 9,70,000, deductible while computing income of the firm. तो कहने से कोई भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिलता है, वो उसकी पीजीबीपी इनकम बनती है। इट इज नॉट सैलरी इनकम, इट इज अ पीजीबीपी इनकम। पार्टनर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है ना, और ये टैक्सेबल इसलिए होगा क्योंकि फर्म को ये माइनस भी मिल गया। तो पार्टनर को ये 9,17,000 कहाँ पे 9,17,000 कहाँ पे टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, नो डिलीवरी ऑफ द शेयर्स वॉज टेकन, 4 लाख। जब हमने पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा था तब मैंने एक नोट लिखवाई थी, एनी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इज टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली। एंड व्हाट इज स्पेक्युलेटिव, इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग। इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस, इट इज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में हमने समझा था कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने सेट ऑफ होता है। अगर कोई स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं है तो इस लॉस को सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दो फॉर अपकमिंग 4 ईयर्स। ये जो तुम्हारा रेम्यूनरेशन है ये तो नॉन स्पेक्युलेटिव पीजीबीपी इनकम है, जबकि ये लॉस तो स्पेक्युलेटिव है। ये एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये टैक्सेबल होगा। ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आने वाले 4 सालों के लिए। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 7 लाख। लेट अस अज्यूम इट अदर इनकम, आईएफओएस, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा बोला नहीं है। नाउ इफ दिस इज आईएफओएस 7 लाख, ये नॉर्मल आईएफओएस इनकम नहीं है, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है। और इस पर्टिकुलर इनकम के सामने नीचे उन्होंने ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस दिया हुआ है 25,000 रुपया। यस, वी कैन सेट ऑफ दिस 25,000 रुपीज अगेंस्ट दिस, क्योंकि वो लॉस सिर्फ इसी इनकम के सामने माइनस होता है, तो 25,000 माइनस होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, 9,20,000। और ये एलटीसीजी के सामने नीचे उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिखा हुआ है 3,80,000, और वो भी लेजिटिमेट लॉस है क्योंकि वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ। तो ये 3,80,000 हम क्या करेंगे, इस 920 के सामने सेट ऑफ करेंगे। लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है। इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000। नाउ इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज एसओपी, नेट एनुअल वैल्यू अंडर हाउस प्रॉपर्टी विल बी 0। इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड अंडर 24 क्लॉज बी, पर एसओपी है, रिपेयर करने के लिए लोन लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट है
वो मैक्सिमम माइनस मिलेगा 30,000, और इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आएगा वो सिर्फ 30,000 आएगा, ना कि 1,20,000। और ये जो लॉस है वो आप किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हो अप टू मैक्सिमम 2 लाख। ये तो सिर्फ 30,000 है ना, तो किसी के भी सामने माइनस करो। आप चाहो तो एलटीसीजी के सामने भी कर सकते हो, आप चाहो तो पीजीबीपी के सामने भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बुद्धि यूज करो, इसकी टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा होने वाली है। इट मे बी पॉसिबल कि ये 30% के स्लैब में आ जाए, तो क्यों मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ करूँ? वो तो स्पेशल रेट इनकम है जिसपे सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा अगर 23 जुलाई के बाद होगा तो, और उसके पहले होगा तो भी 20%। मैं इस पर्टिकुलर लॉस को उस इनकम के सामने माइनस करूँ ना जिसमें ज्यादा टैक्स भरना पड़े, 30% टैक्स भरना पड़े, पीजीबीपी या तो आईएफओएस, उसके सामने माइनस करना ज्यादा बेटर रहेगा। पर एक चीज याद रखो, अगर आप डिफॉल्ट रिजिम में ही रहते हो, दैट इज अंडर सेक्शन 115 बीएससी, तो हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, तो ये लॉस भी उस वक्त जीरो हो जाएगा, तो इसे आप किसी के सामने सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे। तो ओल्ड रिजिम में 30,000 का लॉस आएगा जो दूसरों के सामने सेट ऑफ होगा, 115 बीएससी में ऐसा कोई लॉस आएगा ही नहीं, तो किसी के सामने सेट ऑफ होगा ही नहीं। Amount received as advance toward the sale of shop, which was later forfeited as the buyer could not comply with conditions specified, 5 लाख। इनडायरेक्टली आईएफओएस का एडजस्टमेंट है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो बोलता है कि एनी एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड अंडर द हेड आईएफओएस। तो ये 5 लाख रुपए आपको कहां पे टैक्सेबल होने वाला है? आईएफओएस के अंदर। शेयर ऑफ द लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 1,10,000। अगर पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट आता है तो वो एग्जम्प्ट होता है 10 क्लॉज 2A, तो अगर लॉस आता है तो वो भी तो एग्जम्प्ट होगा, और कोई भी एग्जम्प्ट लॉस टैक्सेबल इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। मेरी नोट्स के अंदर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये लॉस भी आप किसी के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, एंड हेंस इग्नोर। लॉस ऑन बैटिंग 20,000। हमने ये भी पढ़ा है कि कैजुअल इनकम के सामने आप कोई लॉस माइनस नहीं कर सकते, कैजुअल एक्टिविटी का लॉस किसी के सामने माइनस नहीं कर सकते। ये कैजुअल एक्टिविटी का लॉस हो गया, इसे भी क्या करेंगे? इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ग्रॉस 80,000। द एफडी ऑफ 10 लाख वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर फादर इन लॉ ऑन 1 अप्रैल 24। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 हमें क्या बोलता है? इफ यू आर अ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, you transfer your property to your son-in-law, that is you transfer your property to son's wife, that is daughter-in-law, without adequate consideration. Whatever will be the income arising out of that, it will be clubbed in the hands of that father-in-law or mother-in-law. यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। पहला, फादर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को 10 लाख की एफडी गिफ्ट करी, पर ये तो रिलेटिव हो गया ना, लिनियल असेंडेंट ऑफ द स्पाउस, तो ये गिफ्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाली स्पाउस सन्स वाइफ को। दूसरा इफेक्ट, इस 10 लाख की एफडी में से सन्स वाइफ को 80,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, पर कहने से ये तो क्लबिंग के प्रोविजन में ट्रैक हो गया, तो ये 80,000 का जो इंटरेस्ट है वो सुरभि को टैक्सेबल नहीं होगा, वो उसके फादर इन लॉ को टैक्सेबल होगा, उनको क्लब हो जाएगा, तो हमें इसे अपनी इनकम में ही ऐड नहीं करना है। ये 2 लॉस के बारे में तो हमने ऊपर चीज़ें देख ली। आर यू गेटिंग दिस? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, इतने पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए, 9 पॉइंट्स टोटल। 6 मार्क के लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पर ठीक है, ये तो फिक्स ही होता है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमेशा असेसमेंट प्रोसीजर की 4 मार्क की थियरी, सबसे सिंपल। स्पेसिफाई द पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अरे 2 लोगों को एडवांस टैक्स नहीं भरना है, सबसे पहला ही पॉइंट मैंने एडवांस टैक्स में ये दिया हुआ है। पहला, जिसका एडवांस टैक्स पेएबल इज लेस देन 10,000। दूसरा, हु इज अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, 4 मार्क। दूसरा, स्टेट विथ अप्रोप्रिएट रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 2 ट्रू और फॉल्स है, 4 मार्क के। रीजंस भी लिखने। एन इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड ओनली वंस। यू ऑल शुड रिमेंबर माई स्टोरी व्हाट आई हैव टोल्ड इन द लेक्चर। नहीं, रिवाइज रिटर्न आप चाहो उतनी बार फाइल कर सकते हो, गलतियां चाहो उतनी बार सुधारी जा सकती है एक हद तक। एंड व्हाट इज दैट लिमिट? 139 सबसेक्शन 5, 3 months प्रायर टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 24-25 का रिवाइज रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2025। एक बार आप रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे, इट विल रिप्लेस योर ओरिजिनल रिटर्न, और ओरिजिनल रिटर्न को तो चाहो उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स।
Updated return under 139(8)(a) cannot be filed if original return is a loss return under 139 subsection 3. नहीं, it can be updated. The statement is again false. आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू कोई भी नया रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई भी पुराना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो. तो भले ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है, आप उसे अपडेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड अपडेटेड रिटर्न के अंदर लॉस नहीं दिखना चाहिए. भले ओरिजिनल में लॉस था चलेगा, अपडेटेड के अंदर लॉस नहीं दिखना चाहिए. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. अदरवाइज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो यहाँ पे मैंने ये भी पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है. ये तो बात हुई सारा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एक ऑब्वियसली ऑप्शनल था 10 मार्क का. फिर ये पूरा जीएसटी है जो ऑब्वियसली नितिन सर माइट बी डिस्कसिंग विथ यू. मैं सीधा जा रहा हूं एमसीक्यूज पे. एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था जिसमें से 3 क्वेश्चन थे. दूसरा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है जिसमें से भी ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क के, और 2 सेपरेट क्वेश्चन है. सारे एमसीक्यू 2 मार्क के हैं, सिर्फ एक एमसीक्यू 1 मार्क का है. ठीक है, सबसे पहला केस स्टडी पढ़ते हैं पहले तो. आई डोंट नो व्हाई दिस टाइम आईसीएआई इज गिवन सो सिंपल केस स्टडी. बहुत ही ज्यादा सिंपल केस स्टडी है. थोड़ा दिमाग अगर लगाओ तो आंसर फटाफट आ जाए. रीनू, a resident individual aged 48 years, owns 2 flats A and B in Hyderabad. She lives in a flat A and gave flat B to her in-laws for their residential purpose. कहने का मतलब दोनों ही फ्लैट SOP हो गए. She does not charge any rent from them. पे इसीलिए तो self occupied property बोल रहे. In the month of April 24, she entered into an agreement to buy flat C from a builder in same area as her other flats are situated. अभी तक सिर्फ agreement हुआ है. In the month of September, she took possession of the flat C and started spending her weekend there after paying a token of 11,000 to the builder. However, flat C is still not registered in her name. अब देखो, there is अभी तक ये एक्चुअल ओनर नहीं बनी है, पर there is a section 27 deemed owner तो बोलता है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया सेलर के साथ, टोकन अमाउंट पे कर दिया और घर का पोजेशन भी आपको मिल गया, तो भले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाओगे. तो ये जो रीनू है ना, ये तीसरी प्रॉपर्टी की बन गई डीम्ड ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और ये उसके रहने के लिए ही यूज कर रही है. तो बेसिकली इसके पास अब 3 घर है और तीनों के तीनों क्या है, एसओपी. शी हैड वन मोर फ्लैट डी which was let out on a monthly rent of 45,000 to Mr. Shubh during 21-22 till Shubh did not pay 3 month का रेंट. रीनू सोल्ड द फ्लैट ऑन 31 मार्च 24. तो 24-25 में ये इसकी ओनर नहीं है, लास्ट ईयर तक ये इसकी ओनर थी और इसका 3 महीने का रेंट इसको नहीं मिला था. शी ओन्ड 5,000 शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड लिस्टेड इंडियन कंपनी विच वॉज अक्वायर्ड ऑन 1 December 22 फॉर 180 per share. On 1 January 25, the company bought 2,000 shares back, paid 420 per share. बायबैक का प्रोविजन भी इंक्लूडेड है इसके अंदर. 1 October 24 के पहले अगर बायबैक होता तो कंपनी वुड हैव पेड द एडिशनल इनकम टैक्स. 1 October 24 या उसके बाद अगर बायबैक होता है तो कंपनी कुछ पे नहीं करेगी, वो शेयर होल्डर को टैक्सेबल होगा अंडर IFOS डीम्ड डिविडेंड सेक्शन है 222F. साइमल्टेनियसली वो कैपिटल गेन में भी टैक्सेबल होगा, पर वहां पे FVC विल बी 0, सिर्फ कॉस्ट माइनस होगा. जब आप ये बायबैक की अमाउंट IFOS में टैक्सेबल करोगे, आप उसमें से कोई डिडक्शन ले सकते नहीं हो, कॉस्ट भी माइनस नहीं कर सकते. केस स्टडी इतना ही है. पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज फार एज टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कंसर्न. Any 2 flats of her choice will be treated as SOP, whereas the third flat will be treated as deemed let out. मुझे तो यही सही लग रहा है पहला तो, क्योंकि देखो अगर 3 घर SOP है, इनकम टैक्स तो किसी 2 घर को ही SOP मानता है, बाकी के घर क्या बन जाएंगे, डीम्ड LOP. तो एज ऑफ नाउ दिस फर्स्ट, दूसरा 1 फ्लैट विल बी ट्रीटेड एज SOP, ये गलत हो गया. C, फ्लैट A will be treated as SOP, फ्लैट B will be treated as deemed LOP, गलत. D, all the 3 flats will be treated as SOP, बिल्कुल गलत. राइट इज ऑप्शन A, क्योंकि 2 ही फ्लैट SOP हो सकता है. Assume Shubh pays the arrears of rent to Reenu during the year. What will be the treatment of such rent received if she had to spend 5,000 for such collection? Section है 25A. Recovery of arrears of rent या तो unrealized rent. It will be taxable in the year in which it is received. Compulsory under the head
income from house property even though you are not a owner after 30% standard deduction. तो यहाँ पे 45,000 3 महीने के हिसाब से जो टोटल आपका रेंट आएगा, वो टोटल जो आपका अरियर्स रिसीव हुआ उसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने को मिलेगा. बाकी कोई खर्चा माइनस नहीं मिल सकता. तो वो 5,000 अलग से माइनस नहीं होंगे, 30% सीधा माइनस हो जाएगा. एंड कंपलसरी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी. तो यस, 1,30,000 ग्रॉस मिला, उसमें से 30% माइनस करोगे, वॉट एवर विल बी द अमाउंट, दैट विल बी द राइट आंसर. एंड कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज फार एज द टैक्सेबिलिटी ऑफ बायबैक इज कंसर्न? 1 अक्टूबर 24 या उसके बाद हुआ है तो कहाँ पे जाके टैक्सेबल हो जाएगा? वो IFOS. तो जो पूरा अमाउंट आएगा दैट इज 8,40,000 की अमाउंट है. कैसे 8,40,000? 2,000 शेयर थे, 420 पर शेयर आपको मिला, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? IFOS एज अ डीम्ड डिविडेंड. पहला ही ऑप्शन वो दिख रहा है, 840 विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ रीनू. और दूसरे कहीं पे भी वो चीज़ नहीं है. सो यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. केस सिनारियो नंबर 2. Sudipto, a resident individual aged 54 years, gifted shares of Indian company listed on a recognized stock exchange to his friend Shanu to help him financially on 1 April 24. जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है उसको गिफ्ट इनकम टैक्सेबल होगा, वो बात अलग है. The gift deed states that the shares will be transferred back to Sudipto in the event of the death of Shanu. ये कोई रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है, ये एक इररिवोकेबल ट्रांसफर है. सेक्शन 62. If you transfer any asset which will not be returned back to the transferor till the death of transferee, then it is a irrevocable transfer. क्लबिंग नहीं होगा. जिसके शेयर्स उसी को उसकी इनकम टैक्सेबल. The FMV of the shares is 54 lakh. Shanu received dividend of 4,50,000 on this shares. हाँ तो बढ़िया, ये डिविडेंड इनकम किसको टैक्सेबल होगी? शानू को, क्योंकि क्लबिंग के प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगने वाले. Sudipto is engaged in the business of retail trade as proprietor. During 21-22, he paid 25,000 per month to his wife, Swati, as a salary, being marketing in charge. Swati does not have any professional qualification or expertise for the job. So obviously 64 subsection 1 clause 2. If you are substantially interested in a concern, spouse is employed by the concern without any technical or adequate knowledge, clubbing of the remuneration will be applicable. This income was clubbed in the hands of Sudipto as per the clubbing provision. तो बराबर किया. Now Swati started her MBA studies and did not get any salary up to 1st December 24. She completed her MBA marketing course on 1st December 24. So now she is eligible to do the work. Again she joined husband's business and now she is getting 55,000 per month की salary which is as per the market norms. तो कहने से 24-25 में अब क्लबिंग नहीं हो सकता क्योंकि स्पाउस के पास ये काम करने का टेक्निकल या एडिक्वेट नॉलेज आ गया. तो अब उसकी सैलरी स्वाति को खुद को टैक्सेबल होगी, वो उसके हस्बैंड सुदीप्तो में क्लब नहीं होगी. ड्यूरिंग 24-25, सुदीप्तो पेड 54,000 एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक फॉर हिज सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हु आर नॉन रेजिडेंट. अंडर सेक्शन 80D इन ओल्ड रिजिम, इफ यू पे मेडिक्लेम फॉर योर पेरेंट्स यू विल गेट द डिडक्शन. और अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होंगे तो 50,000 का अप टू 50,000. पर यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन तो मिलेगा, 25,000 का मिलेगा मैक्सिमम. अब जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. Assume other income of Sudipto and Shanu is 55 lakh and 11 lakh respectively. Which of the following statement is correct? तो ये स्टेटमेंट जो है वो डिविडेंड के बारे में, और हमने डिविडेंड के बारे में क्या पढ़ा कि ये इररिवोकेबल ट्रांसफर है तो क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा. Dividend income shall be clubbed in the hands of Sudipto. As this is the case of transfer of asset without adequate consideration, galat, it is not a right answer. Dividend income shall be taxable in the hands of Shanu as clubbing provision will not apply in this case. I think this is right but still refer other two. Dividend income shall be taxable in the hands of Sudipto as other than dividend is higher than that of Shanu. ये तो कोई provision ही नहीं है, तो minor वाले केस में. Dividend income is exempt from taxation, बिल्कुल नहीं. So right answer is option number B. Which of the following statement is correct as far as clubbing of salary of the Swati is concerned? Salary of Swati will continue to be clubbed in the hands of Sudipto? नहीं.
Salary of Swati will be taxed in her hands as now she has acquired the qualification. Yes, this is the right answer. What will be the amount of deduction under 80D? Assuming he has opted out of default regime, क्योंकि 115 BSc में तो मिलता ही नहीं, तो जैसे हमने डिस्कस किया नॉन रेजिडेंट पेरेंट्स है तो भी चलेगा. डिडक्शन कितना हो जाएगा? मैक्सिमम अप टू 25,000. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Then 7th MCQ is all about TCS provision. 206C subsection 1G. ओवरसीज टूर ऑपरेटर पैकेज परचेस करो तो वो आपका कितना TCS कलेक्ट करेगा? अप टू 7 लाख 5%, बियॉन्ड 7 लाख 20%. एंड अगर आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी कि आउटसाइड इंडिया पैसे ट्रांसफर करते हो तो वो ऑथराइज डीलर कितना TCS कलेक्ट करेगा? 7 लाख तक जीरो, उसके ऊपर 20%. अगर एजुकेशनल या मेडिकल ट्रीटमेंट होता तो 5%, और अगर एजुकेशन लोन लेके उसमें से रेमिट करते तो 0.5%. यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं. रवि हु इज एन इंडियन रेजिडेंट bought an overseas tour package from Karthik, who is also a resident Indian and a seller of a overseas tour program, paid ₹7 lakh as a cost. तो 7 लाख की ट्रिप परचेस करी, ओवरसीज ट्रिप. यहाँ पे 0% वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. 7 लाख तक 5% TCS, तो यहाँ पे कितना TCS आएगा? 35,000. He also remitted 12 lakh to USA under liberalized remittance scheme of RBI to invest in USA share market. तो ये तो कोई मेडिकल या एजुकेशनल पर्पस तो हुआ ही नहीं, अदर पर्पस हो गया. तो LRS में अप टू 7 लाख इट विल बी जीरो. ठीक है, अप टू 7 लाख इट विल बी जीरो. और 7 लाख के ऊपर जो 5 लाख है उसका कितना TCS आएगा? 20%. और वो जो 20% है वो कितना होगा? 1 लाख रुपया. तो व्हाट विल बी द टोटल TCS अमाउंट ओवर हियर? 1,35,000. दैट विल बी 1,35,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो यहाँ पे टोटल आंसर विल बी 1,35,000 क्योंकि ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू गया. AP एंड सन्स HUF. लास्ट MCQ 1 मार्क का, एक्चुअली ये 2 मार्क का होना चाहिए था बट 1 मार्क का. AP and Sons HUF is controlled by Amrendra, the Karta of HUF. Amrendra, who is an Indian citizen, stays in country T, regularly visits India. During 24-25, he visited India for 190 days and managed the affairs of HUF. HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. इफ कंट्रोल और मैनेजमेंट wholly or partly managed या controlled from India, HUF will become resident. If HUF is resident and Karta fulfill both additional condition, HUF will become R&OR. Karta don't fulfill both additional condition, HUF will become resident but not ordinary resident. यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इंडिया से ये HUF मैनेज हुआ है, तो जो HUF है वो बन क्या गया? रेजिडेंट. During immediately preceding 5 years, he visited India, that is Karta visited India for 70 days each year. Prior to that he was visiting India for 185 days in every year. तो यहाँ पे हमें एक बार HUF रेजिडेंट है तो कर्ता की बोथ एडिशनल कंडीशन देखनी पड़े. उसमें वन ऑफ द कंडीशन इज पीछे के 7 साल में वो इंडिया में होना चाहिए 730 डेज. यहाँ पे वो 730 डेज नहीं है. पीछे के 5 सालों में वो 70 डेज था, दैट कम्स टू 350. उसके पीछे के 2 साल, क्योंकि 7 साल देखना है, 185 था. अगर आप टोटल करोगे वो एग्जैक्ट 720 होता है. 730 डेज की कंडीशन नॉट फुलफिल्ड. कर्ता फेल्ड टू फुलफिल बोथ एडिशनल कंडीशन, तो HUF क्या बनेगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RBNOR. तो रेजिडेंट बिकॉज कंट्रोल मैनेजमेंट इज पार्टली मैनेज फ्रॉम इंडिया, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बिकॉज स्टेटस ऑफ कर्ता इज RBNOR. ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि बाकी सब सुटेबल. ये तो फिर IDT का MCQ है जो नितिन सर डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे. दैट वॉज एंटायर September 25 अटेम्प्ट का पेपर. वॉज इट ईजी? यस, ईजी था क्योंकि MCQs बहुत सिंपल थे, कैश मार्क वगैरह मिल सकता है. इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. कुछ लोगों के लिए मॉडरेट हो सकता है, बट लेट मी अश्योर यू, सो फार एज आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर नोट्स वगैरह आपने प्रॉपरली पढ़ी है ना मेरी, 100% पेपर इज विद इन द नोट्स. मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने क्लास में सॉल्व किए थे, जो आपने भी अगर एक बार सॉल्व किए हो, पास्ट पेपर्स वगैरह किए हो, इसमें कुछ अनदेखा है ही नहीं. पूरा पेपर देखा है, और सिर्फ थोड़ा बुद्धि 1-2 जगह पे अच्छे से लगाना है जहाँ पे उन्होंने ट्विस्ट करके चीज़ों को पूछा हुआ है. इट वॉज अ डैम गुड पेपर. और कुछ इस तरीके से इसमें वेटेज था.
रेजिडेंशियल स्टेटस 7 मार्क का, 7 मार्क का हाई वेटेज। हाउस प्रॉपर्टी 4 मार्क, सैलरी 4 मार्क, पीजीबीपी 10 मार्क। पहला क्वेश्चन। कैपिटल गेन 6 मार्क, आईएफओएस 4 मार्क, क्लबिंग 4 मार्क, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 6 मार्क, अ गुड वेटेज। डिडक्शन 4 मार्क, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एज यूजुअल 7 मार्क, बोला ही था इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट प्रोसीजर 4 मार्क। इस तरीके से टोटल 60। कोई एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते हो तो दैट बिकम्स योर 50 मार्क का पेपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? सितंबर 25 वालों, अगर आपने ये देखा भी है वीडियो और आपकी गलती आपको मिली, ऑल ओके बेटा, एक दो गलती से, दो तीन गलती से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपको अच्छे ही मार्क मिलने वाले हैं। बिलीव इन गॉड। जनवरी 26 स्टूडेंट देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपको और मेहनत की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी से लग जाइए उसके ऊपर, चीज़ों को डिटेल में पढ़ना शुरू कीजिए। DT IDT समथिंग नॉट दैट ऊपर ऊपर से पढ़ो हो जाएगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एनी क्वेरीज वी ऑल आर देयर, हम सारे प्रोफेसर JKC के वी ऑल आर हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। Wherever you have a doubt, you all have our social media handles and you can contact us on that. Thank you so much, guys.